aggregate demand and aggregate supply. And this we have completed till the relationship between APC, APS, NPC and NPS. Today we are going to do the numerical ability zone. So let's start with the numerical ability zone. So this is the numerical ability zone. Problem is if APS is 0.6, how much will be the APC? We know that APC plus APS is equals to 1. Now if we want to find APC, 1 minus APS, answer will come. Let us see the solution. APC is 1, APC is equals to 1 minus APS. Why? Because we know that APC plus APS is equal to 1. Then इसको APS की वैल्यू पुट की तो APC कितना आ गया 0.4. This is as easy as you can remember, right? If MPS is 0.8, how much will be MPC? Same, MPC is equals to 1 minus MPS because we know that MPC plus MPS is equal to 1. तो MPC निकालना तो MPS इधर चला जाएगा 1 minus MPS. Putting the values, we'll calculate MPC. Third one is a table. Now you have to complete the table. Just look at the table. 400, 240, 500, 320. अब MPC और MPS निकालना. देखो फर्स्ट वाला MPC और MPS हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमें चेंज का नहीं मालूम. Because the formula to calculate MPC is delta C upon delta Y and to calculate MPS is delta S upon delta Y. So when to calculate MPC, change in C is 320 minus 240 divide by 100. Change is of 100. This is 100. This is 80. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे it will be 0.8. Now here 395 minus 320 it is 75. 600 minus 100 change कितने का आया 100 का तो 75 upon 100 is 0.75. 465 minus 95 it is 70. Then again 700 minus 600 100 तो change कितने का आया 70 और 100 का 70 divided by 100 0.70. Now there are two formulas by which you can calculate MPS. Either you can first calculate S, delta S, or else if you have found out MPC you can directly put the formula 1 minus MPC तो you will get MPS. तो पहला वाला तो डैश ही आ जाएगा 1 minus 0.8 it is 0.2. 1 minus 0.75 मतलब 75% तो it is 0.25. 1 minus 70 it is 0.3. This is how we calculate the MPC and MPS. Both the formulas जो हम लोगों ने लगाए you have to put the formulas here and you can also write MPS is equal to 1 minus MPC. This is also the formula which you have utilized. ये नीचे working notes में दिखाने बहुत mandatory हैं whenever you are doing the question which has been given like complete the table. ठीक है. Next problem is level of income is given, saving is given, but you have to find out MPC and MPS. आप इसमें पहले MPS निकाल सकते हो उसके बाद MPC निकाल सकते हो और else you can calculate C. ठीक है. तो C कैसे निकलेगा देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर आपकी सेविंग नेगेटिव है दैट मीन डिस सेविंग्स तो ये कितना हो जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. 20 की इनकम है अभी भी आप सेविंग में से निकाल रहे हो तो 20 प्लस 6 26 बिकॉज वी नो दैट y इज इक्वल्स टू C प्लस एस क्योंकि ये y है C प्लस एस तो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे y माइनस C. तो 0 माइनस 12 0 माइनस माइनस 12 इट विल बी प्लस 12. 20 minus minus 6 it will be 26. 40 minus 0 it will be 40. 60 minus 6 it will be 54. So this is how consumption has been calculated. To calculate MPC we will use delta C over delta Y. ठीक है. तो delta C means we are talking here about the change. जो भी change आया divide by the change in the level of income. income में change 20 का आ रहा है उसको हम लोगों ने लिखा और जो भी चेंज आ रहा है डिवाइड बाय इनकम का चेंज ये हमारा 0.7 आ गया MPC और 1 माइनस MPC हमारा कितना आ गया MPS. आई होप दिस वन इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंट दे दिया C इज इक्वल्स टू y माइनस एस. सॉरी आई हैव रिटन C हियर, दिस इज S. ये जो ऊपर एक्सप्लेन मैंने किया y इज इक्वल्स टू C प्लस एस, C इज इक्वल्स टू y माइनस एस, ये यहाँ पे हिंट दे दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा सही है जिसमें MPC इज़ गिवन टू यू, सेविंग इज़ गिवन and you have to calculate APC and APS. For this consumption is must. You should know the consumption. This is level of income. Now to find out the consumption what you have to do.
MPC इज गिवन। देखो पहला कंजम्पशन तो डिस सेविंग्स जितनी होगी उतना ही होगा। वी नो दैट सेविंग्स इज -30, दैट मीन्स जीरो लेवल पे हमने 30 का कंज्यूम किया होगा। उसके बाद का कंजम्पशन क्या कैसे आएगा, हमें MPC पता है, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई। MPC कितना है 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा C, वी डोंट नो क्योंकि चेंज कितना आया हमें तो नहीं पता। वाई में कितना चेंज आया 100 का, ये 100 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डेल्टा C। ये है चेंज इन C, 75 का चेंज आया तो दैट मीन्स 30 प्लस 75 इट इज़ 105। लाइकवाइज अगेन वील डू, तो सभी में चेंज कितने का आएगा, क्योंकि हमारा MPC सभी में 0.75 है और Y का चेंज सब में 100 का है, तो सभी में 75 ऐड करते जाएंगे और हमारा कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। आप देखो ये आपका MPC है, सेविंग है, कंजम्पशन देखो पहला कितना है 105, कैसे निकाला ये आपको मैंने बताया था, उसी हिसाब से निकालेंगे। प्लस 75 180 प्लस 75 255, कंजम्पशन आ गया। कंजम्पशन को जब इनकम में से माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। कंजम्पशन को इनकम में से माइनस करेंगे दैट मीन्स सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C, बिकॉज Y इज इक्वल टू C प्लस S हमको मालूम है, ठीक है। एंड व्हेन वी गेट द कंजम्पशन एंड इनकम वील कैलकुलेट द APC, एंड व्हेन वी गेट द सेविंग एंड इनकम वील गेट द APS। सो you just write this question in a notebook and try to solve it on your own. Here the hint is given, calculate consumption by applying the formula MPC is equals to delta C upon delta Y, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कैसे आपने कंजम्पशन निकाला। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन अ टेबल हैज़ बीन गिवन जिसमें इनकम गिवन नहीं है, हमको MPC गिवन है और C गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली सी द चेंज इन C is 75, here also 75, here also 75, by putting the formula MPC is equals to delta C over delta Y, is 0.75 is equals to 75 upon delta Y। 75 0.75 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस साइड लेके आऊँ इसको तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा Y इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 0.75, पॉइंट हटेगा, 2 0 लग गए, कितना हो गया 100, तो डेल्टा Y कितना होगा 100। डेल्टा मतलब चेंज, तो यहाँ पे चेंज 100 का आएगा तो 0 प्लस 100 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300। दिस इज हाउ वील कैलकुलेट अवर इनकम, एंड बाय यूजिंग दिस इनकम वी कैन कैलकुलेट सेविंग, बिकॉज कंजम्पशन इज गिवन हियर। MPC की हेल्प से हमने इनकम निकाल लिया, इनकम की हेल्प से हम लोग सेविंग निकालेंगे, ठीक है। Y माइनस C, 0 माइनस 30 माइनस 30, 100 माइनस 105 माइनस 5, 200 माइनस 180 20, 300 माइनस 2 255 45, सेविंग आ गया तो APS का फॉर्मूला क्या है, S अपॉन Y, सेविंग डिवाइड बाय इनकम, हमारा APS आ गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने हिंट यही दे रखी है, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y करके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया किस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। डेल्टा C अपॉन MPC इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज C इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 0.8Y। हमें पता है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY होता है। C बार इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट मीन इट इज़ गिवन C बार इज 4000। B क्या होता है MPC, क्या हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रूव करना है APC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो कितना हमारा फॉल हो रहा है, हम लोगों ने अज्यूम कर दिया, ये अजम्पशन है, दिस इज़ दी अजम्पशन कि सपोज़ हमारी इनकम जो है वो 20,000 की है, तो हमारा APC कितना होगा। हमने कंजम्पशन निकाला, बिकॉज APC इज इक्वल्स टू C अपॉन Y, हमने Y की वैल्यू यहाँ पे लगा दी 20,000, तो हमने C कैलकुलेट कर लिया, C कितना आ गया 20,000। फिर हमने क्या किया, C अपॉन Y निकाला, 20,000 अपॉन 20,000 1, APC बना। नाउ व्हेन इनकम इज़ इंक्रीजिंग टू 30,000, क्योंकि ये अजम्पशन है, उन्होंने सिर्फ ये बोला, अज्यूम करो कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है, कोई भी इनकम हमने रख ली, आपको सिर्फ ये बताना APC फॉल होता है। हमने पहले इनकम रखी 20,000 मान लिया, लेट अज्यूम, तो हमारा APC कितना है 1। जब 30,000 रखा तो हमारी जो ये इक्वेशन है C इक्वल्स टू 4000 प्लस 0.8, Y की जगह क्या आ जाएगा 30,000, तो हमारा कंजम्पशन कितना आया 2800। APC कैलकुलेट किया, कितना हुआ 2800 अपॉन 30,000, कितना है 0.933। व्हेन इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 20,000 टू 30,000, APC फॉल्स फ्रॉम 1 to 0.933। So this has been proved by this example.
So this is our last example which I am explaining to you. In our economy, consumption function gives as S is equals to sorry, this is not consumption function, this is saving function. This is saving function. Saving function है -1000 प्लस 0.4 y. ये क्या है 0.4? यहाँ पे हमारा क्या आता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. यहाँ पे 1 माइनस बी क्या है, एम पी एस. तो सी बार हमारा हो गया 1000, ठीक है. और आपका 1 माइनस बी मतलब आपका एम पी एस कितना है 0.4. तो अब इन्होंने दे दिया लेवल ऑफ इनकम इज़ 20,000. सपोज हमारा लेवल ऑफ इनकम 20,000 है, तो हमारी सेविंग कितनी आएगी 7,000 की. एपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, एस अपॉन वाई फॉर्मूला लग गया, हमारा कितना आ गया 0.35. व्हेन इनकम लेवल इंक्रीजेज टू 30,000, क्योंकि अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है एपीएस इंक्रीज होता है इंक्रीज इन इनकम के साथ. अब हमने वही एग्जाम्पल ले लिया, हमने सेम इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो अब हमारा एपीएस कितना आया 0.36. व्हेन इनकम वॉज 20,000, APS was 0.35. When income rises to 30,000, APS rises to 0.36. So this is how we can solve the problem. Let us see. Now this is your test your knowledge. These are the questions which you have to do in your notebook, and whichever problem you are facing in doing it, please you can ask me. So you can pause your video here, you can write all these questions and you have to solve. And plus whichever you are facing the problem, ask me anytime. Your queries are always welcome, dear ones. God bless you. All the best.